My friends, now today I am discussing about the function. First of all, we learn what is the function. Function is nothing but it is relation. That is, a relation is said to be function if it obeys some different rule. That is, when a relation is defined as each element of domain has unique image in the codomain. For example, if we take the two sets A and B and the relation A cross B has an order pair, that is, each element of A is related to unique element in B. So we write here the definition of function. We see here function, a relation f, that is, f is a relation. It is not the other things, but it is a relation, and notation of relation is f here, and previous class we write the r. So here a relation f, not r. In previous class r, from a set A to set B is said to be function if every element of A has unique image in B. It means a relation f from A to B obey some definite rule, that is, each element of A has unique image in B. In other words, a function f is a relation. This is vice versa here. A relation f, and this is the function f is a relation from a non-empty set A to non-empty set B, such that domain of f, already we say that the domain of f is A. Here point to be noted, domain of f is A, and no two distinct order pair, here also no two distinct order pair in f have same first element. That is, if f is a function from A to B and AB, this is the order pair, AB belongs to f, then fa is equal to B, where B is called image of A for different rules f. So we see here an example. Please write down a relation from the definition of relation here. And we see the Venn diagram. This is set A and this is non-empty set B, and a rule, suppose we take fx is equal to x plus 1 and the set A is equal to 1, 2, 3, 4. So here was 1, 2, 3, 4. The rule is here fx is equal to x plus 1. So first of all we take 1 as x. 1 is mapping here to 2. Why? यहाँ 1 2 पर ही मैप क्यों होगा?
तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि इसका वैल्यू x का इसमें रखिए f1 सबसे पहले हम लोग निकाल लें, तो 1 + 1 = 2, so f1 is equal to 2. 1 is mapping here to 2, and similarly 2 is mapping here to 3, and 3 is to 4, and 4 is to 5. Each element of A has unique image in B. Unique image in B. No any element in A live here, and each element has an image. And another example also we are writing. This is set A, and this is the set B, and rule is fx is equal to x square, and the set A is equal to 1 minus 1 2 minus 2. So here 1 is a square 1 minus 1 also 1 2 4 minus 2 also 4. Here look at here, 1 and minus 1 has image 1, and 2 and minus 2 image is here 4, as the rule f1 is equal to 1 square equal to 1, f minus 1 is equal to minus 1 square is equal to also 1. यहाँ हम बात करेंगे कि यदि मान लें कि ये कोई मेरा मिरर हो, मिरर है, और यहाँ हम अपना फेस देख रहे हैं, सपोज कीजिए यहाँ कोई अपना फेस अगर देख रहा हो, तो इमेज में इसका फेस नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा। ये है मेरा सेट और ये है मेरा जिसमें मैपिंग करना है, मैपिंग यानी ये ऑब्जेक्ट ये इमेज या मैपिंग इसको कर सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक आदमी का चेहरा एना में एक ही तरह का होता है, कभी भी एक आदमी का चेहरा किसी एना में दो तरह का नहीं हो सकता है। लेकिन यदि इसका अगर ट्विन की बात करें, दो अगर मान लीजिए कोई ट्विन हो, तो दोनों का चेहरा तो एक जैसा हो ही सकता है, यानी एक आदमी का दो चेहरा नहीं हो सकता है, लेकिन दो या दो से अधिक आदमी का चेहरा तो एक ही हो ही सकता है अगर वह ट्विन हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 का यूनिक इमेज है 1, माइनस 1 का भी यूनिक इमेज है 1। तो यहाँ ये मत करना कि ये गलत है, ये फंक्शन नहीं होंगे, ये भी फंक्शन होंगे, क्योंकि इसका पहले देखना होगा कि ईच एलिमेंट ऑफ ए का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, यहाँ कोई नहीं छूट रहा है और सबका यूनिक इमेज हो रहा है। तो 1 का भी 1 ही हो रहा है, माइनस 1 का भी 1 ही आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि 1 का 2 मिल रहा है, एक 1 हो जाए और एक दूसरा 2 हो जाए। अब जैसे देखिए हम तीसरे बात कर रहे हैं, एक तीसरा हम कोई इमेज लेते हैं। अब इस पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ कोई सेट है ए सेट है और यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब ये जो डिफाइंड है वह ए क्रॉस ए पर सेट ऑर्डर पेयर में है, ए टू ए पे यहाँ पे है, और फंक्शन है fx इक्वल टू x प्लस 1। यहाँ देखिए 1 2 3 4 और 5, ऐसी बात है ये सेट है तो इस सेट में भी वही होगा 1 2 3 4 5। अब इस रूल के आधार पर हम बात कर रहे हैं कि fx इक्वल टू x प्लस 1। 1 कहाँ मैप होगा, तो 1 x की जगह 1 रखिए, तो 1 प्लस 1 2, 1 का मैपिंग 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, और 5 का मैप कहाँ पे हो। तो यहाँ पे हम कोई एलिमेंट ही नहीं देख रहे हैं,
जिसके साथ इस 5 का मैच, क्योंकि यहाँ पे तो 1 to 5 ही है। तो आइए बात करते हैं कि क्या यह मैपिंग जो है, ये जो हम देख रहे हैं, ये जो रिलेशन हमको दिखाई दे रहा है, क्या यह फंक्शन होगा? तो पहले आइए देखते हैं यह फंक्शन है या नहीं। तो सबसे पहले जो हमने कहा कि आपको ये देखना होगा कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, ईच क्या क्या सभी एलिमेंट एक का इमेज है। तो देख रहे हैं 1 का तो है, 2 है, 3 भी है, 4 भी है, लेकिन 5 एक एलिमेंट मेरा यहाँ लीव कर रहा है, छूट रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, यह कोई रिलेशन है, यह फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है? इसके दो कारण है कि यहाँ पे हमारा कोई एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। इधर रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। अब इसके बारे में हम रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, तो फिर उस फंक्शन को कौन सा फंक्शन नाम देंगे, इस तरह के फंक्शन क्या होंगे। तो हम लोग 12th में बात करेंगे, 12th में भी फंक्शन पढ़ना है। वहां पे टाइप्स ऑफ फंक्शन में 1 फंक्शन होंगे, ऑन टू फंक्शन होंगे, फिर 1 ऑन टू होंगे, फिर मेनी वन फंक्शन होंगे, मेनी वन इन टू होंगे, मेनी वन ऑन टू होंगे। इस तरह से हम फंक्शन के बारे में ज्यादा जानकारी 12th में पढ़ेंगे। लेकिन 11th के क्लास में क्या है कि हमें सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का डिफरेंशिएशन जानना है। डिफरेंशिएशन जब हम फंक्शन का देख रहे हैं तो इस डिफरेंशिएशन में एक डिफरेंशिएशन में आपको बता दूं, वो है रियल फंक्शन किसे कहते हैं, या रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। तो यदि कोई फंक्शन ऐसा हो कि a से b पर डिफाइंड हो और दोनों के दोनों क्या हो, रियल नंबर का सेट हो, यानी ए फंक्शन f from a to b is called real valued function if the value of both a and b are real number। यहाँ पे रियल नंबर का हम बात करें r के लिए, तो ये सारे फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ उतना ही बात है। अब हम जानेंगे कि ग्राफ ऑफ फंक्शन, हम कुछ फंक्शन का नाम जानेंगे और फिर उसके ग्राफ के बारे में देखेंगे। तो 9th में भी हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल का ग्राफ, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल क्या था। तो वहां पे हमने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ देखा था, क्वाड्रेटिक का देखा था, क्यूबिक का देखा था। तो वो सारे के सारे यहाँ पे हो जाएंगे ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल का। फिर इस तरह से हम आइडेंटिटी फंक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले इस क्रम में आइए हम लोग बात करते हैं तो ग्राफ्स ऑफ सम फंक्शन। तो आप जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा ग्राफ ऑफ सम फंक्शन। तो इस ग्राफ में, ग्राफ ऑफ सम फंक्शन में सबसे पहला जो फंक्शन है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो खुद पर खुद मैप हो। जैसे आप रिलेशन में देखे होंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन 1 1 2 2 3 3 इस तरह के हुआ करता था। तो यहाँ भी आइडेंटिटी फंक्शन सेम वही है, लेकिन यहाँ पर वो रिलेशन था, ये फंक्शन है। मैं आपको फिर से बता दूं कि सारे के सारे फंक्शन जो होते हैं वो रिलेशन है, लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन नहीं है। जैसे मैंने अभी देखा कि वह रिलेशन तो था लेकिन वह फंक्शन नहीं था। तो आप लोग भी इस बात को याद रखिए कि सारे के सारे फंक्शन जो है वह रिलेशन है, लेकिन सारे के सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं। तो इस क्रम में आते हैं आज लोग ग्राफ ऑफ सम फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो पहला जो हमारा ग्राफ है ये ग्राफ ऑफ फंक्शन। ग्राफ ऑफ फंक्शन में जाने हम लोग, तो पहला जो फंक्शन है वह हम देख लेते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। यह आइडेंटिटी फंक्शन क्या है तो हम लोग जानिए आइडेंटिटी फंक्शन। ग्राफ ऑफ फंक्शन में हम लोग द फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन किसे कहते हैं लिख लीजिए, यह फंक्शन कौन सा है, आइडेंटिटी फंक्शन। तो पहला हम जान रहे हैं आइडेंटिटी फंक्शन किसे कहते हैं, द फंक्शन f r to r, यानी यह क्या कौन सा फंक्शन हो गया, r से r पर। अभी मैंने बताया कि r से r पर ऐसा फंक्शन जिसका सेट a भी कोई रियल नंबर हो और सेट b भी कोई रियल नंबर हो, तो ऐसे कहलाते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, या रियल फंक्शन हम लोग कह सकते हैं इसको। तो रियल वैल्यूड फंक्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पे f जो है r to r लिखा। तो फंक्शन f r to r such that fx equal to x, ये कोई फंक्शन है, यह फंक्शन कहलाता है आइडेंटिटी फंक्शन। क्यों कि यहाँ पे यदि हम f1 का वैल्यू निकालें तो 1 ही होगा, फिर इस तरह से f-1 निकालें तो ये -1 होगा, फिर अगर f2 का वैल्यू निकालने के लिए कहे तो 2 ही होगा, फिर इस तरह से f-2 अगर निकालने के लिए कहे तो ये -2 ही होगा।
तो ऐसे सारे फंक्शन जो कि वह उसी पर लाइज करते हो तो वह कहलाता है आपको आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन हमने जाना कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड। अब इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन सारे के सारे हम लोग देख रहे हैं कि रियल नंबर ही होंगे और रेंज भी सारे के सारे रियल नंबर ही होंगे। तो अब जो डोमेन ऑफ रेंज हमने जान लिया, आइडेंटिटी फंक्शन जान लिया, अब इसका ग्राफ कैसा होगा। तो याद कीजिए हम लोग क्लास 9th और 10th में ग्राफ खींचना सीखे थे, तो वही है जो 9th 10th में हम लोगों ने ग्राफ खींचा। ये है x और यहाँ पे ये है एफ एक्स। अब x का वैल्यू रखे जाइए और एफ एक्स आपको आते जाएगा। तो x का वैल्यू यदि हम 0 रखें तो f का 0, 1 रखें तो 1, -1 रखें तो -1, 2 रखें तो 2, -2 आया तो -2। अब इस तरह से हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ प्लॉट कीजिए आप 1 2 3 4 इस तरह से हम नीचे करें और -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। अब 0 0 देख रहे हैं, 1 1 2 2 इस तरह से 3 3। फिर अगर बात करें -1 1 -2 2 -3 3। तो ये जो मेरा ग्राफ आ रहा है स्ट्रेट लाइन, यह क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का। तो देख रहे हैं यह कैसा ग्राफ है, यह एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमने देखा। यहाँ पे इसको थोड़ा सा गौर करके देखिए कि ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन आप एक ग्राफ देख रहे हैं। इस तरह से कांस्टेंट ग्राफ किसको कहते हैं और उसका कैसा होता है। तो आइए हम दूसरा ग्राफ की बात करें। अब दूसरे नंबर पर है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में एफ एक्स इक्वल टू सी ऐसा कोई हम लें ताकि वह क्या फंक्शन क्या किस पर डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू सी। तो लिख लीजिए कांस्टेंट फंक्शन के लिए फंक्शन एफ एक्स, ए फंक्शन एफ अगर लिख लें, ए फंक्शन एफ यदि हम ले और यह कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन ही हो तो यहाँ पे R2 R भी ले सकते हैं। तो ये फंक्शन f R2R ये रियल वैल्यूड फंक्शन है और ये है एफ एक्स इक्वल टू सी। यहाँ पे एफ एक्स क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ एफ एक्स इक्वल टू सी जो होगा वह क्या कहलाएगा, एफ एक्स इक्वल टू सी इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। यानी आप x का वैल्यू कुछ भी रखिए तो वह क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। तो यहाँ डोमेन क्या हो जाएंगे और इसका रेंज क्या होगा। तो डोमेन सारे के सारे, अगर डोमेन f की बात करें तो डोमेन कोई रियल नंबर हो जाएगा और अगर रेंज की बात करें, रेंज अगर रेंज r रेंज f की बात करें तो रेंज f इसका हो जाएगा c। सारे के सारे उसी में मैप करता है। तो इस तरह से हम क्लास 9th और 10th में भी हम इसका ग्राफ जानते हैं। वहां पे y इक्वल टू 3 का ग्राफ हमने खींचा था, x इक्वल टू 3 का ग्राफ खींचा था। तो मान लेते हैं कि कोई अगर फंक्शन यदि f1 अगर निकालने के लिए है 1 2 3 हो और किसी मैपिंग कोई कांस्टेंट 5 पर है, तो यह सपोज कीजिए हम c के जगह 5 ले लिए, तो ये f1 5 पे मैप किया, f2 भी 5 पे मैप करेगा, f3 भी 5 पर ही होगा। तो इस तरह का ग्राफ हम क्लास 9th में गए थे, याद कीजिए वो पुराना। तो y इक्वल टू 5 इसका कैसे ग्राफ खींचे थे, या x इक्वल टू -3 का ग्राफ कैसे खींचे थे। तो क्लास 9th 10th में हमने इसको खींचा है। तो ठीक इस तरह से अगर 5 है तो अपवार्ड अगर ले 1 2 3 4 5 अगर कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट का ग्राफ जो होगा वह इस तरह स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये क्या कहलाएंगे, एफ एक्स इक्वल टू सी। यहाँ से यहाँ तक अगर मान लीजिए 5 तो 5 था, अगर सी के जगह पे अगर हम 5 लिख दें, एफ एक्स इक्वल टू 5, ये मेरा ग्राफ होगा। इस तरह से माइनस आएगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये ग्राफ क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट। ठीक इस तरह से हम लोग कुछ ग्राफ ऐसे हैं जिसका कि आपके एनसीईआरटी बुक में
दिया हुआ है और क्लास 9 10 में भी हम पढ़े हैं। जैसे कि पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर हम खींचे तो उसके लिए लीनियर के लिए एक स्ट्रेट लाइन आता था, क्वाड्रेटिक के लिए पैराबोला या हाइपरबोला आता था, फिर इस तरह से हम क्यूबिक के लिए देख रहे थे। तो आप एनसीईआरटी किताब से इसके ग्राफ को गौर से देखिएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ को समझाने का प्रयास करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि ग्राफ अलग अलग फंक्शन के कैसे कैसे होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।